مت کی. میری بیٹی چلی گئی, پلیز مل کے کچھ کھڑے ہو اور تاکہ کسی اور کی بیٹی نہ جائے یار, ورنہ یہ یوں ہی خبر بنتی رہے گی, تصویریں کھنچتی رہے گی, ہونا کچھ نہیں ہے. پہلے وعدہ جو ہاسپٹل سیل کرنے سے ریلیٹڈ تھا اس پر عمل ہوا. مالکان کی گرفتاری سے متعلق ہمارا دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ انڈیپینڈنٹ انکوائری کمیشن بنایا جائے, کسی جج کی نگرانی میں بنائی جائے. میرے سے یہ جو کمٹمنٹ ہے گرفتاری کی, یہ آئی جی کلیم امام صاحب نے دی تھی. مجھے چیف منسٹر صاحب انہوں نے یہ کمٹمنٹ دی تھی کہ ہم انڈیپینڈنٹ انکوائری کمیشن بنائیں گے. ہمارے دو بنیادی باقی کے وعدے ہیں جو اب تک پورے نہیں ہوئے. میں خود مطمئن نہیں ہوں ان کی رپورٹ سے. ہیلتھ منسٹر صاحبہ نے بھی وہ رپورٹ کری, میں بات ہوئی تھی اور کہا بالکل ہم مطمئن نہیں ہیں, کام ہوگا اسپتال کے خلاف. ہیلتھ کیئر کمیشن کی میرا خیال ہے کمزوری تھوڑی سی ادھر ضرور نظر آتی ہے. نشوا کا معاملہ یا قیصر بھائی کی بیٹی کا معاملہ یہ پہلا معاملہ تو نہیں ہے. جان کر کسی نے نشوا کی جان نہیں. اسپتال کو سیل کرنے کے ہم مخالف ہیں. کیا تھر میں روز بچے نہیں مر رہے؟ اور لوگ جو مریض ہیں ان کے ساتھ کیا ہراسمنٹ ہے, یہ ٹیررزم ہے. میرا والد وہاں آئی سی یو میں موجود ہے اور مجھے پتا چل رہا ہے اسپتال بند ہو رہا ہے, بھائی میں کیا کروں گا. اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ 72 آورز کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے کہ ان کو کسی دوسرے اسپتال میں شفٹ کیا جائے. یہ کیا ہے, کس جگہ ہم رہ رہے ہیں, ہم جنگل کے قانون میں رہ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے اس سے. السلام علیکم ناظرین, ویلکم ٹو دا شو لائیو ود نادر مرزا. ناظرین, ابھی ڈاکٹر قیصر سجاد کہہ رہے تھے کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں, جنگل کے قانون میں رہ رہے ہیں. حقیقتاً دیکھا جائے تو ہم جنگل کے قانون میں ہی رہ رہے ہیں. کچھ عرصے قبل جب کسی بھی چیز کو ہم اپنے ملک کی سیاست حکمرانوں سے علیحدہ نہیں کر سکتے. کچھ عرصے قبل جب نواز شریف صاحب شدید علیل تھے اور بات ہو رہی تھی کہ ان کو جو ٹریٹمنٹ ہوگا وہ کہاں ہوگا, آیا کہ وہ پاکستان میں ہوگا یا ملک سے باہر ہوگا, تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جن کی حکومت ہے سندھ میں, انہوں نے آفر کی کہ جی ہم چاہتے ہیں, بلکہ ہم آفر کرتے ہیں نواز شریف صاحب کو کہ وہ آئیں اور سندھ میں علاج کرائیں. ایک طرف وہ آفر, دوسری طرف یہ نشوا کے والد جو ہاتھ جوڑ کر یہ انصاف کی بھیک مانگ رہے تھے, اور وہ اس لیے مانگ رہے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے تو جو ہو گیا سو ہو گیا, اب وہ جو انصاف مانگ رہے ہیں وہ کسی اوروں کی اولادوں کے لیے, اوروں کی بیٹیوں کے لیے اور اوروں کے بیٹوں کے لیے مانگ رہے ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرے ساتھ ہوا وہ ہوا, لیکن اللہ کسی اور کی بیٹی کے ساتھ یہ نہ کرے, یا کسی اور کی بیٹے کے ساتھ یا کسی اولاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ چیز نہ ہو. اور یہ جو غفلت ہوتی ہے اور یہ جو نیگلیجنس ہے اور یہ مرڈر جس طرح سے ہو جاتے ہیں, یہ اس طریقے سے نہ ہو. یہ نشوا کا ایک کیس نہیں ہے. دوسری طرف ایک اور کیس ہے جو نام ہے بچی کا عصمت. وہ اتنی چھوٹی بچی نہیں ہے, وہ بالغ بچی ہے. یہ لڑکی, آپ تصور کریں کہ ایک لڑکی دانت میں تکلیف ہے, وہ ہاسپٹل جاتی ہے کہ وہ کچھ اپنی پین کلر لے لے یا کوئی انجیکشن لگوا لے, اور وہ ہاسپٹل سے واپس نہیں آتی. جب ماں اس کو بار بار فون کرتی ہے, پہلے کوئی اٹھاتا نہیں ہے, اور جب کوئی اٹھاتا ہے تو بتاتے ہیں کہ جی وہ آپ جو ہے نا وہ یہ کورنگی کا کوئی گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہے کہ آپ جنا ہاسپٹل چلے جائیں. ماں رکشہ لے کے وہاں بھاگتی ہے, راستے میں فون آتا ہے, نہیں جی اس ہاسپٹل آ جائے. جب اس ہاسپٹل کے دروازے پہ دوبارہ سے اس رکشے میں پہنچتی ہے کورنگی ہاسپٹل کے دروازے پر اور گورنمنٹ, تو وہاں پہ پھر فون آتا ہے کہ نہیں آپ ایسے کریں, کہاں پہنچ گئی, اچھا ادھر آ گئی, نہیں آپ واپس جنا ہاسپٹل چلی جائیں. مطلب یہ اس طرح کر رہے ہیں. جب وہ مطمئن نہیں ہوتی, وہ اندر جاتی ہے تو اندر اس کی بیٹی کی لاش ملتی ہے, اور وہ بیٹی کی لاش پہ کہا جاتا ہے کہ جی جو اللہ کی مرضی وہ ہو گیا, اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے, لیکن جو آپ اس کے پیچھے کرتے ہیں. پھر ماں کو کہتے ہیں جی اب آپ روئے نہیں, کچھ نہیں کریں, یہ اپنی بیٹی کی میت اٹھائیں اور گھر لے جائیں. جو اللہ کی مرضی تھی, جتنی زندگی لکھوا کر آئی تھی, بعد میں جب پوسٹ مارٹم ہوتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی. نہ صرف اس کے ساتھ زیادتی ہوئی, اور زیادتی ہونے کے بعد اس کو انجیکشن دے کے مار دیا گیا. یہ ہے ہمارا ملک, یہاں انسان کی جان کی قیمت یہ ہے, یہاں پہ ہماری بچیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہے. اب تک نہیں ہے, کل تک نہیں تھی, آگے کس طرح سے روکی جائیں گی پروگرام میں بات کرتے ہیں, یا روکنے کی کوشش کی جائے گی. میرے ساتھ موجود ہیں قیصر علی صاحب جو کہ نشوا کے والد ہیں. السلام علیکم قیصر علی صاحب. السلام علیکم. بہت شکریہ قیصر علی صاحب آپ کے ٹائم کا. اور میں صرف افسوس کر سکتی ہوں, آپ کے غم میں شریک ہونے کی بات کر سکتی ہوں, بحیثیت ماں آپ کی تکلیف کو, آپ کے غم کو سمجھ سکتی ہوں. کم از کم گزر یقیناً آپ پر رہی ہے. ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب موجود ہیں, جنرل سیکریٹری پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن. السلام علیکم ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی. ایڈوکیٹ ضیاء وان صاحب ہیں, لیگل ایکسپرٹ ہیں. السلام علیکم ضیاء وان صاحب, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی.
میں جو عصمت کی بچی کی بات کر رہی ہوں اس کے والد بھی تھوڑی دیر بعد ہمارے ساتھ ہوں گے موجود، لیکن ذرا میں نشوہ کے جو والد ہیں قیصر علی صاحب، قیصر علی صاحب، میں دیکھ رہی تھی کہ کل آپ ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے، مجھے تکلیف اس لیے ہوئی اور جو میں نے آج کا پروگرام بھی ترتیب دیا کہ ایک شخص جس کی بچی اس کے آنکھوں کے سامنے اس نے ایک طرح سے تڑپ کر جان دے دی، کیونکہ وہ غلط انجیکشن اس کو 7 تاریخ کو لگا، 22 اپریل کو اس کی ڈیتھ ہوئی، آپ لمحہ بلمحہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور وہ کس طرح سے موت کے منہ میں جا رہی، اس کے باوجود آپ کو ہاتھ جوڑنا پڑ رہے ہیں اور آپ کو پریس کانفرنسز کرنی پڑ رہی ہیں، مطالبے کرنے پڑ رہے ہیں کہ مجھے انصاف دے دو اور اگلی نسل کو یا کسی اور کے بچیوں کو انصاف دے دو۔ ہم کس بے حس ترین معاشرے میں رہ رہے ہیں اس وقت؟ ایک وہ تکلیف تھی جو اللہ رب العزت نے میرے مقدر میں لکھی تھی اور جس کو میں نے اللہ پاک کی رضا سمجھ کے قبول کیا۔ آپ یقین کریں، میں جو ہے نا حلفاً یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تکلیف باخدا مجھے کم لگتی ہے جب میں سسٹم کے ان لوگوں کو کہ وہ اتنے انہیومن ہیں کہ وہ اپنی بات، اپنی چیزیں چھپانے کے لیے، اپنا غلط کام کرنے کے لیے اس پر بھی سیاست کر رہے ہیں۔ یار کوئی جگہ ہوتی ہے بھائی۔ میں ڈاکٹر انور سجاد صاحب بیٹھے ہیں، یہ بہت سینئر ہیں، میں اس دن اپنے اس میں بیٹھا ہوا تھا بورڈ روم میں ایک لائر کے ساتھ ڈسکشن میں ان کی پریس کانفرنس سنتے ہوئے مجھے رونا آیا کہ جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاسپٹل بند کرنا زیادتی ہے۔ میں نے کسی بھی جگہ یہ نہیں کہا کہ ہاسپٹل سیل ہونا چاہیے سر، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو میں نے کہا تھا کہ 2 کلومیٹر پہ اوجھا ہے، آپ آ کے ٹیک اوور کر لیں، ایڈمنسٹریٹر اپنا بٹھائیں لیکن غلط لوگوں کے ہاتھوں میں مت دیں۔ دوسری بات میں نے یہ کی صرف انویسٹیگیشن تک سیل کریں۔ آپ کے پاس 4 آپشن ہیں، اگر لوگوں کو سیلریز دینی ہے تو وہ ان ہاسپٹل کے اونرز کا کام ہے، وہ میرا نہیں ہے، ان کا قصور ہے، وہ بیچارے کیوں پس رہے ہیں اس میں۔ آپ اس کو ہائی لائٹ نہیں کر رہے، آپ کو یہ تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ جیسا سینئر ڈاکٹر جب یہ کہتا ہے، جب سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن اپنی رپورٹ میں کہتی ہے کہ 170 میں سے 100 لوگ ہیں جن کا نرسنگ کا کورس نہیں ہے اور 70 ہیں، تو آپ جیسا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان 100 کو الاؤ کرو کہ وہ اوروں کی زندگیاں ختم کریں۔ سر آپ ایک اینٹیٹی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، خدا کے لیے ہمیں اللہ کو جان دینی ہے۔ میرا آپ سے مورل گراؤنڈ پہ گلا ہے۔ ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب، کیا کہنا ہے آپ کا؟ آپ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہاسپٹل بند نہ ہو؟ کیا آپ اسٹرکٹ ایکشن کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں یہ کہہ کے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ دارالصحت اسپتال بند کر دیا، میرا کوئی دارالصحت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس کو بند کر دیا، کل 2-4 دن بعد یہ بات میں نے قیصر صاحب کو بتائی تھی کہ 1 ہفتے کے بعد جو ہے، آج ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، 1 ہفتے کے بعد نیو کراچی میں یہی واقعہ ہو جاتا ہے، 4 دن بعد جو ہے ملیر میں ہو جاتا ہے، گلشن میں ہو جاتا ہے کسی اسپتال میں، تو کیا ہم اسی طرح سے ہسپتال بند کراتے رہیں گے؟ میرا اپنا خیال ہے، میں سمجھتا ہوں، معذرت ڈاکٹر، ٹیم یہ سمجھتی ہے، 2 منٹ کے ڈاکٹر قیصر لیے سجاد میں ایک جملہ سیکنڈ، ختم کر رہا ٹھیک ہے ہوں، جی، یہ سمجھتی ہے کہ یہ جتنے بھی چیزیں ہیں جو کسی جگہ پر بھی جو جس کی ذمہ داری ہے وہی پوری کرے۔ نہیں کرتے نا سر، ذمہ داریاں پوری کرتے تو پھر بات ہی کیا تھی؟ میں کہتی ہوں کہ اس اور یہ تمام اسپتالوں میں ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ، ٹھیک ہے ایک سیکنڈ، آپ کہتے ہیں ذمہ داریاں جس کی وہ پوری کرے، اگر وہ پوری کر رہے ہوتے تو یہ حال نہیں ہوتا۔ اگر اس آدمی کو یہ ڈر ہوتا، جو چشتی صاحب ہیں، عامر چشتی کون ہے، کہ میرے ہاسپٹل کو سیل کر دیا جائے گا، میرا بزنس ٹھپ ہو جائے گا، مجھے سلاخوں کے پیچھے ہوگا، میرے اوپر قتل کا کیس بن جائے گا، اگر اس کو قانون کا ڈر ہوتا تو اسی وقت وہ آ کے ان کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ ان کو قانون کا ڈر نہیں تھا، اس وجہ سے اس نے 4 دن تک نشوہ کے والد کی شکل نہیں دیکھی۔ ضیاء وان صاحب، میں غلط کہہ رہی ہوں یا میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ نادیہ، آپ نے بہت صحیح بات کی کہ آیا اس کے لیے پراپر قوانین موجود ہیں، آیا اس پہ جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں ان کا کوئی رول ہے، وہ کچھ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اور ڈاکٹر قیصر سجاد نے جیسے کہا کہ اب جیسے آپ نے ایک اور جو بچی کا وہ جو دانت کے لیے گئی تھی، کیا وہ گورنمنٹ کا ہاسپٹل بھی بند ہو جائے گا یا باقی کے ہاسپٹل؟ روزانہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ڈاکٹروں کی نیگلیجنس ہے یا ہاسپٹل کی نیگلیجنس ہے، اس کے ہزاروں کیسز ہیں، ہزاروں، اور میں نہیں دیکھتا کہ کوئی پی ایم ڈی سی کا اس میں کوئی ایکٹیو رول ہو۔ ناظرین، مختصر سا بریک لینا ہے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو نشوہ کیس کے حوالے سے کچھ مزید بات بھی کریں گے۔
प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। कैसर अली साहब, जहां तक जो आपने इसको एक्सप्लेन किया है, आप ये नहीं कह रहे कि उसको फॉरएवर सील कर दें, आप ये कह रहे हैं कि अगर 170 में से सिर्फ 70 जो अमला है वो तरबियत याफ्ता है, तो कम से कम उस वक्त तक जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो और आप अपना पूरा स्टाफ को तरबियत दें, उस वक्त तक सील कर दें, ये गैर तरबियत याफ्ता अमला वहां पर प्रैक्टिस ना करता रहे। यही बात है डॉक्टर कैसर अली साहब? जी जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन की रिपोर्ट है ना, ये मेरी इंडिविजुअल मेरा ख्याल नहीं है, ठीक है। तो या तो आप उस जगह तक ले आएं अपने स्टैंडर्ड को और उसके बाद आप चलाएं, लेकिन जब तक आप नहीं लाते, ये ड्राइवर नहीं है, ये HR नहीं है, ये एडमिन नहीं है, जी हाँ। ये वो स्टाफ है जिससे इंजेक्शन लग के लोगों की जिंदगी जाती है। यहाँ ये कह के नहीं छोड़ा जा सकता कि रोजगार है, यहाँ जिंदगी कनेक्टेड है। देखिए, जो कैसर अली साहब बात कर रहे हैं, मेरा अपना ख्याल ये है कि जो पैरामीटर्स हैं वो तय करके सारे हॉस्पिटल्स को रिसीव कराएं और सिर्फ कराची के नहीं, पूरे सिंध के अस्पतालों में ये इसको रिसीव करवाएं और उसके बाद उनको एक टाइम दें कि भाई ये टाइम है, अगर आपके पास अनप्रोफेशनल स्टाफ हुआ सो यू विल हैव दिस पेनल्टी, और हमारे पास वो पेनल्टीज भी होनी चाहिए। क्योंकि जो इतने कॉम्पिटेंट हमारी सिंध गवर्नमेंट होती। कैसर अली साहब, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिएगा कि एक तो बात यह है कि ज़ाहिर मुझे आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं चूंकि ये जो आमिर चिश्ती हैं उनकी एक एफिलिएशन है MQM के साथ और वो उनके बड़े सरगर्म रुकन है, वो इलेक्शन में उनको टिकट भी मिला था और खड़े भी हुए थे, आपको लगता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो रहा है इस केस पे? कहीं ना कहीं कोई प्रेशर्स बिल्ड हो रहे हैं पॉलिटिकल होने की वजह से, या मामले को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है? देखिए, मैं यहाँ इसी आप ही की बात को लेते हुए एक सबसे अहम पॉइंट शेयर करना चाह रहा हूँ कि हमारे जो 2 पॉइंट है ना जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट पे जाएंगे, ठीक है जी। उसमें एक गिरफ्तारी है और एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन है इन सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। अच्छा, जो गिरफ्तारी है ना वो मेरा इंडिविजुअल मसला है ना कि उन्हें गिरफ्तार करें, जिसके लिए इफेक्टिव मैं हूँ, ठीक है। मैं उसको सेकेंड पॉइंट पे लेके आया हूँ कि मेरा प्राइम मकसद क्या है कि जब आप इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन बनाएंगे ना, जब वो लिस्ट निकालेगा कि इतने अनलाइसेंस्ड हैं, इनके पास इतना स्टाफ है, ये सर्विसेज दे सकते हैं, ये सर्विसेज नहीं दे सकते, इनको बंद कर दें, और ये सर्विसेज देंगे, इसके इतने पैसे होंगे, तो उसके अंदर जब ये मैं बात करता हूँ तो इसका प्रेशर क्या बन रहा है, इसके अंदर सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो अनलाइसेंस्ड हैं वो भी प्रेशर दे रहे हैं। इसके अंदर वो पॉलिटिकल पार्टीज जो कभी ना कभी एक दूसरे को अगर सपोर्ट करती भी रही हैं कि यार अगर चलो कमीशन नहीं बन रहा या कुछ नहीं हो रहा, तो ये अगर बात शुरू हो जाएगी तो इसका मसला आएगा। लेकिन ये जो प्राइम बात है कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन, ये पब्लिक इंटरेस्ट में, ये सिंध के कराची के लोगों में है कि कोई और नशवा रिपीट ना हो, और हम ये नहीं कह रहे कि उस कमीशन को हम डिक्टेट करेंगे, मतलब वो जो चाहते हैं कमीशन है। कैसर साहब का जो सजेशन है ना, कैसर अली साहब का, वो बिल्कुल सही है कि हमारे इस पे इंडिपेंडेंट कमीशन बनना चाहिए, और इसके अलावा PMDC को ये चाहिए और गवर्नमेंट को भी चाहिए, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, कि वो कोई ऐसी जो है ना गाइडलाइंस बनाएं और ऐसा कमीशन बनाएं जो परमानेंटली काम करे। डॉक्टर कैसर सजाद, आपके इस पे क्या कमेंट्स हैं? मैं टोटली एग्री करता हूं जो कैसर अली भाई बोल रहे हैं ना कि जुडिशियल कमीशन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन, वो क्या है, इंक्वायरी कमीशन बनाए, बिल्कुल सही है। हमें जो परेशानी है वो ये है कि इससे पूरा माशरा ठीक नहीं होगा, पूरा सिस्टम सही नहीं होगा। चूंकि हमने ये बात की है कि दारुसैद हॉस्पिटल में और लोग मौजूद हैं, आप इनको पहले ट्रीट करा लें या किसी और जगहों पे इनको शिफ्ट करा लें उसकी, ताकि उनको हरासमेंट ना हो, वो परेशान ना हो, वहां ऑलरेडी पेशेंट है। उसके बाद जो कुछ भी है इंक्वायरी में जो रिपोर्ट आती है वो बंद करें, और इस तरह के जितने भी अस्पताल है, देखें इस मुल्क के अंदर जब तक जजा और सजा का डिफिसिट है ये पूरा नहीं हो रहा है। कैसर अली साहब, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिएगा कि 7 अप्रैल को जब निशवा को गलत इंजेक्शन लग गया, और गलत इंजेक्शन लगने के बाद जिस तरह से आपका रिएक्शन था और जो मुझे बताया गया है, तो आपने किसी से बात करने की, हॉस्पिटल की जो मैनेजमेंट थी, ये चिश्ती साहब थे, दीगर थे, उन तक आपका राब्ता हुआ नहीं हुआ? उन्होंने आपके साथ ताउन किया नहीं किया? उसके बाद का मुझे थोड़ा सा बता दें, फिर मैं आपको थैंक यू कहूँगी। जी मैम, हुआ ये है कि 7 को जब इंजेक्शन लगाया तो 7 की सुबह 6:30 बजे इंजेक्शन लगाया, 7 की शाम 8 बजे मैं दारुसैद की एडमिन में जाता हूँ और प्रॉपर तरीके से कंप्लेन फॉर्म पे कंप्लेन लिखता हूँ कि आपके यहाँ ये इंसिडेंट हुआ है। और आपको किसने बताया?
मुझे चूंकि मैनेजमेंट से ही मतलब जो उधर उस वक्त ट्रीटमेंट हो रहा था तो वहाँ ही से पता चल गया था ये KCL लग गया है, ठीक है। और इन्हीं के एक डॉक्टर हैं जिनको डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब ने जो शेयर किया, उन्होंने बता दिया था कि ये हो गया, ठीक है। तो मैंने एक कंप्लेंट फॉर्म दिया, मैंने कहा आपके यहाँ ये इंसिडेंट हुआ है। मंडे को ये 4 बजे पूरा बोर्ड मीटिंग के लिए बैठता है जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, CM और सब बैठते हैं। उसमें ये इकरार करते हैं कि हमसे गलती हुई है, 1 हमने निगलिजेंस है, 2 हमने मोइज को सस्पेंड कर दिया, 3 चौथा ये कि अभी ICU में जो भी खर्चा हो रहा है ये आप नहीं कीजिएगा। लेकिन अलमिया क्या है कि ये उस वक्त हम मुझे ये नहीं बताते कि कैसर साहब हमारे पास पीड्स ICU नहीं है, आप कहीं और ले जाएं वरना ये मर जाएगी। ये मुझे अच्छा, आपको ये नहीं बताया था कि ये इंजेक्शन जानलेवा भी साबित हो सकता है या उससे ब्रेन डैमेज हो सकता है? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि वहाँ 3-4 चीजें थी जिसको अपनी पहली गलती को छुपाने के लिए इन्होंने क्या किया कि पहला काम ये था कि इनके पास रिससिटेट करने का जो एक्सपर्ट होता है जिसे इंसेंटिविस्ट कहते हैं, ठीक है, जो ICU का एक्सपर्ट होता है, वो नहीं था। वो किसी नर्स ने 45 मिनट का CPR किया। ये मुझे बोलते मैं ले जाता और वो LNH AKU में लेके जाने से हो जाता। ये हमारी डॉक्टर्स की रिपोर्ट कह रही है। दूसरा, इन्होंने वेंट पे रखा, अमन एम्बुलेंस में वेंट पे फौरन पीड्स ICU में मैं दूसरे हॉस्पिटल लेके जाता तो बच्ची बच सकती थी पहले फिट्स आने से पहले। तीसरी बात, 8 तारीख को एक EEG होती है जिसके अंदर ये आता है कि दिमाग बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन 18 को जो EEG होती है लियाकत नशे, उसमें ये पता चलता है कि दिमाग बिल्कुल फारिग हो गया। ये ज्यादती हुई है एक अपनी गलती को छुपाने के लिए कि अगर ये बात बाहर गई तो ये बात खुल जाएगी। इस्मत के वालिद से भी मैं जरा यहाँ पर बात करूंगी। मुख्तसर सा ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। तो निशवा के वालिद हमारे साथ नहीं, लेकिन इस्मत के वालिद हमारे साथ होंगे और ये पैनल हमारे साथ होगा। उनकी कहानी भी जरा अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं, उन पर क्या बीती है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और यहाँ पर निशवा के वालिद से हमारी गुफ्तगू हो रही थी और जिस तरह से उन्होंने बताया, और तकलीफ दे बात यह है कि हॉस्पिटल की इंतजामिया ने उनको जिस तरह से बेखबर रखा। एक तो पहले तो नेग्लिजेंस जो हुई, उस बच्ची को गलत इंजेक्शन लगाया, उसके बाद उनको ला इल्म रखा कि उसकी इंटेंसिटी क्या हो सकती है, उस बच्ची का ब्रेन डैमेज हो गया, उनको नहीं बताया इस बच्ची की इसमें जान जा सकती है, उनको नहीं बताया। उनके पास जो तिब्बी सहूलियात थी वो बच्चे के लिए नाकाफी थी, उनको नहीं बताया। और 15 दिन जिंदगी और मौत की कश्मकश से लड़ती बच्ची ये अपना केस हार गई, जिंदगी से हार गई और मौत जीत गई। इसमें भी जरा मैं कमेंट लूंगी। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जो इस्मत कत्ल केस की मैं बात कर रही हूँ, इस्मत उस लड़की की बात कर रही हूँ, उसके वालिद बाबू खानिजो। और ये बच्ची वो है जो अपने दांत की तकलीफ के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोरंगी गई और वहां पर उसकी इस्मत दरी हुई, उसकी ज्यादती हुई और फिर उसको मौत का इंजेक्शन लगा दिया ताकि वो किसी को ये बात बता ही ना सके। इस मुल्क में रहते हैं हम, इस मुल्क में। बाबू खानिजो साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबू खानिजो साहब, मुझे जो बताया गया इस्मत बच्ची के, आपकी बेटी के बारे में, तो मुझे मुख्तसरन ये बताइएगा कि वो बच्ची हॉस्पिटल दांत के दर्द के लिए गई थी, दांत की तकलीफ के लिए गई थी, और क्या पहली दफा गई थी या वो उसी हॉस्पिटल जाती रहती थी, कोई अपॉइंटमेंट था उसका? इसने पहले 1 महीना काम किया था, जिसको तकरीबन 3-4 महीना हो गया या 6 महीना हो गया, काम छोड़ दिया था। ओके। हाँ, इसका घर में बैठी रही, अचानक इसके दांत में दर्द हुआ, इसने जाके किसी और अस्पताल से, जिना अस्पताल से मेरे ख्याल में, उसने दांत भी निकलवा दिया। उसके बाद उस दांत में कोई खराबी हो गई जिसकी वजह से इसने गोलियां भी ली थी, ठीक हो गया। 1 हफ्ता गोलियां खाई, दांत सही हो गया, दर्द तकलीफ खत्म हो गई। खाली चेकअप करवाने गई थी और कुछ नहीं था। अब फिर वहां पे उसके आपको ये रिपोर्ट, जब उसकी, जो मुझे पता चला कि उसकी वालदा ने फोन किया और उसके बाद फाइनली जब वालदा वहां पर पहुंची और पता चला कि वहां पर तो इस्मत की डेथ हो चुकी है, उसका इंतकाल हो चुका है, पोस्टमार्टम आप लोगों ने खुद करवाया? जी हाँ, पोस्टमार्टम हम लोगों ने खुद करवाया है। ओके, उसमें क्या रिपोर्ट आई? उस रिपोर्ट का अभी तक पता हमें नहीं है, कह रहे हैं कि अभी तक नहीं आई है, जब आएगी तो आपको बताएंगे। नहीं, 18 तारीख को ये वाकया हुआ है। जी जी, आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। जी, हमें ऐसा लगता है कि डॉक्टर शकील के साथ उससे जब ये ड्यूटी कर रही थी तो उस दौरान
इनकी मुंहमारी आपस में हुई थी, जिसके लिए उसने शिकायत भी दर्ज की थी अपने जो ऐसे इदारे को चलाने वाली थी उसको, मैडम को। तो उसके बाद ये हुआ कि हमने बोला बाबा, घर वालों ने, उसकी अम्मी ने बोला, खाला ने बोला, सब ने बोला बाबा ये काम छोड़ दो। इसने इस्तीफा दे दिया। उसका समझो इसने बदला लिया है। डॉक्टर कैसर सजाद साहब, इस केस के हवाले से आपके पास कुछ रिपोर्ट्स हैं? जी हाँ, ये भी एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है और ये भी वही बात जो हम कर रहे हैं बार बार। और नादिया, अगर सिस्टम को, फिर मैं कह रहा हूँ, सिस्टम अगर सही नहीं हुआ तो इस तरह के वाक़े और इस तरह के वाक़े पे आप प्रोग्राम करती रहेंगी। और आपको भी याद होगा कि हम ये सिस्टम के बारे में, हेल्थ डिलीवरी सिस्टम हमारे यहाँ जो है वो बहुत वीक है और काफ़ी अरसे से हम डिमांड कर रहे हैं कि इसको ठीक होना चाहिए। मुझे खुशी इस बात की है कि जब मैं कैसर साहब से मिला था रात को, तो इनकी ख्वाहिश है कि इसको ठीक किया जाए और मैं इनके साथ मिलके ये हो सकता है कि हम ये अचीव करें। जो ये सिस्टम हुआ है कि दांत निकालने गए और लड़की की मौत हो गई, ये कराची जैसे शहर में ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। लेकिन ये भी जो हमें बताया गया कि ये इसमें सिस्टम में कोई खराबी की वजह से हुआ कि उसको कोई एंटीबायोटिक की कोई तजवीज़ की गई और एंटीबायोटिक को ये कहा गया कि आप ये कैजुअल्टी में जाके लगाना है। उसके बाद वो शायद किसी और जगह पे शायद उन्होंने एंटीबायोटिक कैजुअल्टी में नहीं लगाया, किसी लैब में जाके लगवा लिया, तो उसके शायद उसका रिएक्शन हुआ और जिससे उसकी मौत वाक़ई हुई। ये सारी बातें, 2-3 बातें जो चल रही हैं, तो हमें जो बताया गया वो वहाँ के डॉक्टरों ने बताया, वहाँ के स्टाफ ने बताया और कुछ पेशेंट ने बताया। लेकिन हकीकत क्या है ये अल्लाह बेहतर जानता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसकी एक ऐसी इंक्वायरी होनी चाहिए। मुझे शायद पता लगा है कि शायद ये कोर्ट में केस है, और अगर कोर्ट में केस है तो इसकी अगर प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो जाती है और सामने आ जाता है तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात होगी। मसला ये है कि देखें, एक जाहिर सी बात है, वो जो बेचारे जिस तरह से इनके वालिद हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, वो उस केस को इतना समझते नहीं है, वो अपने हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो ऐसे में रियासत की जिम्मेदारी होती है ना। सवाल ये है कि रियासत कहाँ खड़ी है। ज़ियावान साहब, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन एक बात मुझे पूछने दीजिएगा। ये बाबू खानेजो साहब, मुझे ये बताएगा कि जिस वक्त आप लोग हॉस्पिटल पहुंचे या इस बच्ची की, इस्मत की वालदा हॉस्पिटल पहुंची, तो वहां पर क्या मंजर उन्होंने देखा? इस्मत की डेड बॉडी थी, लाश थी, और वो किस हालत में थी? जी, वो स्टेज पे पड़ी थी। जब उसकी अम्मी गई थी, वो उसका जो खालाजाद भाई था वो उसने ढूंढ के निकाली, दिखा किधर। और पहले उसको एक सेकंड सॉरी बाबू साहब, उनको अंदर नहीं आने दे रहे थे, उनको बार बार कह रहे थे कि जिन्ना हॉस्पिटल चले जाएं। हाँ, ये तो बड़ा सवाल ये है। मैं आपसे, आपके तवज्जुह से उनसे पूछना चाहता हूँ, तो आप उनको क्यों भटका रहे हो? किस वजह से भटका रहे हो? जब ये वाकया हो गया, उनका फर्ज बनता था डायरेक्ट फोन करें कि भाई ये मसला हो गया। वो फोन भी नहीं करते हैं, उनको घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं। तो हमें तो पूरा भरोसा है ये पूरा मर्डर है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर जब वहां पर पहुंची आपकी शरीक हयात यानी बच्ची इस्मत की वालदा, तो उन्होंने फिर इस्मत को किस हालत में देखा, क्या बता रहे थे? जी, उसकी अम्मी ने कहा कि वो पड़ी थी स्टेज पे, तो कुछ एक नर्स थी, 1-2 डॉक्टर थे। जब ये दोनों इधर पहुंचे तो उन्होंने बोला अल्लाह को प्यारी है, अल्लाह की रजा, बस हम क्या कर सकते हैं, अभी इसको ले जाओ। ऐसे कैसे ले जाऊं? कोई जानवर तो नहीं था, इंसान का बच्चा है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन क्या ये इनको इंसानियत इतनी भी नहीं है कि भाई हम उनको कॉल करके बताएं कि ये ऐसा मसला हो गया, उसकी डेथ हो गई है या वो मर चुकी है, जो भी है वो बता नहीं सकते थे क्या? उन्होंने बदतमीजी की, एक सेकंड जो भी हुआ अभी ले जाओ, बस ले जाओ, ऐसा बोला जाता है किसी को? उसके इंजेक्शंस लगाए हुए थे जी, उन्होंने इंजेक्शन लगाया। आप खुद देखो, नेट पे तस्वीरें हैं, कैनोला लगा हुआ है, 3-4 और भी निशान पाए गए हैं।
ये इतना क्या मसला था उसको कैनोला लगाने की, क्या जरूरत थी? उसके हाथ पे खून लगा हुआ था। आप खुद देखो नेट पे तस्वीर है, अगर आपके पास नहीं है आप व्हाट्सएप दो, भेजो, हम आपको दे रहे हैं तस्वीर। ठीक है जी, ज़ियावान साहब कुछ कह रहे हैं? मुझे बाबू खानिजो से कहना था कि इनके पास लॉयर की फैसिलिटी है कि नहीं, क्योंकि कैसर साहब तो बता रहे थे कि उनके पास वो किसी लॉयर से डिस्कस भी करें, लेकिन अगर उनको भी ज़रूरत हो किसी एडवाइस की या किसी, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम लोग इनको जो है ना, जो हेल्प हो सकी कैसर साहब को भी और बाबू खानिजो को भी, कि अगर उनको कोई लीगल हेल्प चाहिए, कोर्ट में चाहिए, वैसे अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें उनको कोई गाइडेंस चाहिए, तो वो इनको हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। जी ज़ियावान साहब, मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगी, कैसर अली साहब तो फिर भी चीजों को समझते हैं, वो इतनी समझ बूझ रखते हैं, लेकिन बाबू कि वो अपना केस लड़ रहे हैं और जाहिर है वो देख भी रहे हैं, लेकिन बाबू खानिजो जैसा शख्स जिसको इतनी समझ बूझ नहीं है, मैंने भी उनसे ये सवाल किया था, उन्होंने कहा कि जो उसकी खाला का बेटा है उसने किसी से बात की है तो वो वकील क्या कर रहा है इनको कुछ भी नहीं पता। बाबू को अगर आप आपके तवज्जो से आपके प्रोड्यूसर नंबर मेरा दे दें तो ये मुझसे राब्ता कर लें। बाबू खानिजो साहब, आपको ज़ियावान साहब को आप जानते हैं, इनकी बड़ी खिदमत है ऐसे केसेस में और ये आपकी कोई मदद भी कर सकेंगे। जी मैं तो जानता नहीं हूँ बाबा, हाँ जाहिर है आपको मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन अगर वो मदद करना चाहते हैं तो आला हुकाम से अपील करें कि ये सही तहकीकात करें बस। ठीक है, मैं आपका इसका नंबर उसको आप बोलो, आप अपना नंबर इस नंबर पे सेंड करें, ठीक है, ताकि मेरे पास नाम से लिख के मैं आपका नंबर इनको दे दूंगी, ये आपको खुद कॉल कर लेंगे। देखिए ना, बेसिकली ये जो केस है, ये बड़ी मेहरबानी, ये अगर हम इसको देखें तो बहुत ही अंधोनाक किस्म का ये वाकया है कि अगर उस बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, इट्स अ ह्यूज ऑफेंस, और इस पे तो पूरे मतलब कंट्री के लोगों को हिल जाना चाहिए। खासतौर पे आपके जो इस वक्त बड़े बड़े लोग जो प्राइम मिनिस्टर हैं या इंटीरियर मिनिस्टर हैं या चीफ मिनिस्टर हैं या गवर्नर हैं, उनको तो सबको इनके घर पे जाके उनसे बात करनी चाहिए और जो कुछ भी इनके लिए हो सके, बिकॉज यही सारा स्टेट का काम होता है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी यही है कि वो लोगों की जानो माल की हिफाजत करे। बाबा मेरा एक अर्ज है जी, मेरा अर्ज ये, मैं ये सब कहता हूँ आप सबको कि मेरी आवाज हर इंसान तक पहुँचे आपकी तवज्जो से, कि ये मेरी बच्ची है, ये पाकिस्तान की अवाम की बच्ची है, ये सब पाकिस्तानियों की बच्ची है। ये एक असमत जो भी था इसके साथ वाक़या, इसके साथ अदालत की जाए, इसको इंसाफ दिया जाए। आइंदा अल्लाह न करे कोई ऐसी असमत किसी दरिंदे का शिकार हो या किसी दरिंदे के हाथों कत्ल हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें ना, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, जो हमें जो जिस तरह हमारी पुलिस का जो रोल है, ये सारी चीजें पता चलती हैं कि भाई हम कहाँ वीक है। जी डॉक्टर कैसर सजाद साहब, लास्ट इस पे कमेंट दीजिएगा, क्योंकि मसला ये है कि पहले इनको तो इन्फॉर्म किया नहीं गया। इनकी वालदा जब असमत को बार बार फोन कर रही थी कि सुबह की गई हुई है, मगरिब हो गई है, तो पहले तो कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। फाइनली जब कॉल रिसीव की तो किसी लड़के ने की, उसने कहा कि उसकी हालत खराब है, आप जिना हॉस्पिटल चले जाएं। वो कोरंगी का गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोरंगी का जी, उस लड़के का नाम मुझे आता है। जी, क्या नाम है? शाहजेब। उसने कहा कि जी आप जिना हॉस्पिटल चले जाएं। जब वो रिक्शा लेके जिना हॉस्पिटल के रास्ते के में पहुंची, फोन आता है जी आप इस हॉस्पिटल वापस आ जाए। वो वहां पहुंची तो उनको कहा कि नहीं, जब गेट पे पहुंच गई, नहीं जी आप जिना वापस चले जाएं। तो डॉक्टर कैसर सजाद साहब, ये तो मामला यहीं पे थोड़ा सा वो हो गया ना कि आप ये कर क्या रहे हैं उन वालदा के साथ। अव्वल तो खुद तो आप इन्फॉर्म नहीं कर रहे, आपने सुबह से शाम कर दी। डॉक्टर साहब के बोलने से पहले मैं एक डॉक्टर साहब को सजेशन देना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब चाहें तो पीएमए का एक अपना या बाकी ऐसे लोग उसमें शामिल करके इन दोनों केसों में इनको चाहिए कि अपना फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजें और इसको पूरा फैक्ट फाइंडिंग करके उसकी रिपोर्ट रिलीज करें। जी डॉक्टर कैसर सजाद साहब, देखिए बात सारी ये है कि ये बहुत इनह्यूमन तरीक़ेकार इख्तियार किया गया है। ये तो गैर इखलाकी बात है। अगर किसी को, ये दोनों सूरतों में ये काम हुआ है। कैसर अली साहब के केस में भी यही हुआ है कि एक वाकया होने के बाद उनको उसके बाद डिस्टर्ब किया गया, मिसमैनेजमेंट की गई, उनके साथ ताउन नहीं किया गया और डिले किया गया। जैसे कि उन्होंने बताया कि जी पहले ब्रेन
सेटल था, फिर बाद में खराब हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर मिस मैनेजमेंट ये हुआ है कि एक वाकया हो गया है, होने के बाद उनके पेरेंट्स को मेंटली टॉर्चर किया गया कि आप वहां चले जाएं, वहां से फिर वापस आ जाएं। ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती हैं। और करना क्या, करें क्या, करें मैं क्या यही सर? कह रहा हूँ, हाँ ये नादिया यही बात मैं कह रहा हूँ, इदारे मौजूद हैं, वो अपना काम करें ईमानदारी से। देखिए मैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन या जिया अवान साहब या कोई इंडिविजुअल तौर पे नहीं है जिसके पास इख्तियार है अरेस्ट करने का, इंक्वायरी कराने का, फैक्ट्स एंड फिगर्स जमा करने का। अदालत मौजूद है और मैं फिर कह रहा हूँ बिल्कुल एक लॉज बनाने का, असेंबली मौजूद है। जैसे जिया भाई ने कहा कि ऊपर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, गवर्नर्स हैं, ये तमाम लोग मुतहरिक हो जाएं कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क में। खुदारा ये टेस्ट मेरे ख्याल में ये केस आखिरी होना चाहिए। अल्लाह करे ऐसा हो, अल्लाह करे आखिरी होना ऐसा चाहिए, लेकिन नहीं, अल्लाह नहीं करेगा। मैं समझता हूं कि हम जब करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। अगर हम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, हम इंशाअल्लाह ताला। लेकिन हमें आइंदा ना होना देगा, लेकिन आइंदा नहीं होने के लिए हमें इसके लिए सिंसियरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ, ठीक है, अगर बिल्कुल काम सही है, होगा, बिल्कुल सही है। हम इसको करेंगे। लेकिन एक चीज और बता दूं मैं आपको कि हमारे यहाँ तो नादिया, हमारे पास तो कोई स्टेटिस्टिक्स मौजूद नहीं है। हम सेहत के बारे में क्या बात करें। हम एट रैंडम बात करते हैं कि इस मुल्क के अंदर तंबाकू नोशी से तकरीबन 1 लाख अफराद हलाक हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। हम सिर्फ एक जुमला बोलते हैं कि अल्लाह की मर्जी थी, चलो हलाक हो गया। ये इसको खत्म करना होगा, हमें हुकूमत को इस पे काम करना होगा। जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उस पे काम करना होगा। पूरे कराची, पूरे सिंध में, जैसे जिया भाई ने कहा कि ये पूरे पाकिस्तान में जो इसके कंसर्न डिपार्टमेंट है, पूरी हॉस्पिटल की ऑडिट किया जाए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कैसर सजाद ऑडिट करें। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सजाद साहब, जिया अवान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बाबू खारिजी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका नंबर मैं जिया अवान साहब को दे रही हूँ। जिया अवान साहब, मुझे उम्मीद है कि खुद उनसे राब्ता कर लेंगे और जो कानूनी मदद कम अज कम उनसे हो सकती है, हमारे तवज्जुह से हो सकती है, वो हम करेंगे और जिया अवान साहब भी करेंगे। प्रोग्राम में शामिल बात करने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नादिया मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।